السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم نے الحمدللہ پچھلے سیشن میں سنا تھا نا کہ حضرت عمر ایمان لے آئے، اس کے پہلے سنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ اب کیا ہوا اس کے بعد ان لوگوں نے کیا سوچا کہ یہ کیا ہوا کہ اسلام کی طاقت تو بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعات جو ہے نا، یہ بڑی قسمت کی بات ہے جو ہمیں سننے کا موقع ملا، کیونکہ ان کے زندگی کے یہ وہ سنہرے پہلو ہے کہ اسلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی، ہم تک یہ چیزیں پہنچی کیسے ہے، کتنی قربانیاں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی جب ہم اسے قدرت سنیں گے، ایک ایک معجزے ہمارے کانوں تک ٹکرائیں گے نا، تو ہمارے ایمان کو طاقت ملے گی، ہمارے ایمان کو پاور ملے گی۔ ہم سنیں گے، ہم اپنے اولادوں کو سنائیں گے، ان کا ایمان ایسا مضبوط ہوگا کہ جب دجالی فتنے ابھی عروج پر ہے، شروع ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں گے تو وہ زندگی کے کچھ پہلو جو ہے، جو سنتیں ہیں، وہ ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ جو معجزات ہے وہ سن کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار صحابہ کی مدد فرمائی، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، کتنے ظلم توڑے گئے، پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قربان جاؤں، جو ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ تو جب ہم سنیں گے نا تو ہماری زندگی میں چینجز آئے گا، ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہوگا کہ انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ جو سیشن ہے، یہ سننے کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جانے کا وقت بھی آ جائے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور کیسے گزرے، کیسے انہوں نے دعوت دی، کیسے لوگوں نے ظلم کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد کی، کیسے لوگوں پر انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تو ہم سنیں گے۔ اب پچھلے سیشن میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت عمر ایمان لے آئے، حضرت حمزہ ایمان لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ سوچا کہ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہو گئی ہے کہ بہت بڑے طاقتور دو لوگ، اور اسلام تو بڑھ رہا ہے، 40 لوگ ایمان لے آئے، تو اب کیا ہے، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا، سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ مشرکین مکہ کافر سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم نے جیسے چاہے لوگوں پر ظلم کیے، لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، عقل سے کام لینا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کس طرح سے ان کی دعوت کو روکا جائے، کس طرح اللہ کے ایک ہونے کی جو یہ دعوتیں دے رہے ہیں، توحید کی دعوتیں دے رہے ہیں، رسالت پر ایمان لانے کی باتیں بتا رہے ہیں، انہیں کس طرح سے روکا جائے۔ تو ان لوگوں نے مل کے پلان بنایا، اور یہ پلان ابھی بھی ہوتے ہیں، اس دور میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ایمان اگر ہمارا مضبوط ہونا تو کوئی بھی بڑے سے بڑا طوفان بھی ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو ان لوگوں نے کیا پلان بنایا کہ ابھی تک تو ہم نے جو چاہے کیا، لیکن ابھی اسلام بڑھتے جا رہا ہے، ہمیں اس کو روکنے کے لیے کچھ سودے بازی کرنی ہوگی، کچھ اس طرح سے سودا کیا جائے، کچھ چالاکی سے کام لیا جائے کہ ان کی دعوت کو ہم روکیں گے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ پر تنہا تشریف فرما ہے، مطلب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ موجود تھے۔ تو قریش کے لوگوں نے کیا کہا، آپس میں سوچا کہ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گفتگو کی جائے اور ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائے جس سے ہم سودا کریں ان کی دعوت روکنے کا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپس میں لوگ سردار تھے، جو ان لوگوں میں سے عتبہ بن ربیعہ جو تھا نا، اس نے کہا کہ میں آگے جا کر بات کرتا ہوں اور کچھ سودے بازی بھی کرتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے پیغمبر، محبوب نبی، رحمت للعالمین ہے، ان کو اپنی باتوں میں لے آؤں، ان کی دعوت کو روکنے کی کچھ کوشش کروں تو یہ آگے بڑھتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جائیے جائیے آپ بات کیجئے ان کے ساتھ، کیونکہ ابھی تو کیا ہو گیا کہ اسلام بڑھتے جا رہا ہے، یہ لوگ نہ ظلم و ستم کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ جان جانے کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ زخمی کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی پرواہ کر رہے ہیں۔ جیسے سنا نا ہم نے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینائی تک چلی گئی پر ایمان پر ایسی ڈٹی رہی، آگے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے یہ لوگوں نے سوچا اب میں بات کرتا ہوں، تو پھر وہ آگے آئے اور کہا کہ میں تم سے کچھ معاملہ طے کرنا
चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी बताइए, हदीस शरीफ का मफ़हूम बता रहे हो। तो कहा कि अगर तुम माल चाहते हो, अपनी दावत से तुम चाहते हो कि कुछ माल हासिल करो ना, तो हम तुम्हें इतना माल जमा करके देंगे, इतना कि तुम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओ। ये किससे बात की जा रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये नादान लोग, ये दिल के अंधे, ये आँख के अंधे, कान होते हुए बहरे और ज़ुबान होते हुए गूंगे लोग क्या कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ये दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप माल चाहते हो ना तो इतना माल देंगे कि सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। और अगर तुम ये चाहते हो कि बड़ी इज्जत और मर्तबा हासिल करो लोगों के नजर में, तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं। हाँ, आप हमारे सरदार बन जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का हम फैसला भी नहीं करेंगे। अरे जिसे अल्लाह ने इज्जत अता की, वो ये लोग क्या किसी को इज्जत देंगे? पर देखो, इस तरह से लोगों को खरीदा भी जा सकता है। होता है ना आज हमारे साथ भी जिंदगी में, कभी हम इस्लाम पे या तो कभी किसी हक बात पर डट गए, तो लोग क्या होता है अपनी बातों से खरीदने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त हमें डट के खड़े रहना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम फैसला भी नहीं करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम बादशाह बनना चाहते हो, मतलब सब पे हुकूमत करना चाहते हो, तो ठीक है, हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं। और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है, मतलब कोई जिन या भूत है, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, अस्तगफिरुल्लाह, इन लोगों की अक्लें देखो, कि वो कहते हैं कि कोई चीज तुम्हारे पास आती है जिसे तुम देखते हो लेकिन दूर नहीं कर सकते, तो हम उसका इलाज भी करने के लिए तैयार हैं। और इस सिलसिले में जितना माल हो ना, हम खर्च करेंगे, यहाँ तक कि तुम शिफायाब हो जाओ। अल्लाह अकबर। अब वो ये बात कहता रहा, वो जो उतबा सरदार था ना, वो ये बातें करता रहा, ये ऑफर देता रहा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। और जब वो सब बातें करके फारिग हो चुका, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद, तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हाँ हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अब मेरी सुनो। उसने कहा, ठीक है, सुनूंगा। तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें पढ़ी, और उनका तर्जुमा ऐसे है कि देखो, उसने इतने ऑफर्स दिए, और यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ये आयतें पढ़ते हैं उसके जवाब में कि हामीम, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई है। अरबी कुरान इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला है। लेकिन अक्सर लोगों ने एराज किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे थे, और वो जो सरदार था ना उतबा, उसके दिल पर ऐसा डर हो गया कि अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टेके चुपचाप सुनता रहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की आयत पर पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, फिर फरमाया, अबुल वलीद, तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब उसके दिल पे ना कुरान सुनकर एक गलबा, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब व दबदबा आ गया। वो उठा और सीधा अपने साथियों के पास गया। अब जब उसे आता मुशरिकीन देखने लगे, तो देखा कि चेहरा तो बदला हुआ है। गया था तो कितने शान से, क्या वजह है कि चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? ये जिस तरह से गया था उसका चेहरा वैसा नजर नहीं आ रहा है। तो पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगा, मैंने ऐसा कलाम सुना है कि वैसा कलाम वल्लाह, मतलब खुदा की कसम, मैंने कभी नहीं सुना। खुदा की कसम, वो ना शेर है, न जादू, न कहानत। कुरैश के लोगों, मेरी बात मानो, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मेरी राय ये है कि इस शख्स को उसके हाल पर छोड़कर अलग थलग बैठे रहो। खुदा की कसम, मैंने उसका जो कलाम सुना है उससे कोई जबरदस्त वाकया रोनुमा होकर रहेगा, मतलब कोई हादसा होकर रहेगा अगर आप लोगों ने बात नहीं मानी। फिर अगर उस शख्स को अरब ने, मतलब आप लोगों ने मार भी डाला ना, तो तुम्हारा काम दूसरों के जरिए अंजाम पाच कर रहेगा, मतलब आप लोगों पर भी कोई अजाब आकर रहेगा। और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया, मतलब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत, मतलब अगर ये गालिब आ गया तो ये मक्के वाले हैं, तो आपकी बादशाहत होगी, इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। इस तरह से वो कहने लगा, और वो बाजू में हट गया, मतलब उसके दिल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना दबदबा आ गया। अल्लाह अकबर। और ये लोग नाकाम हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करने में। इसके बाद क्या हुआ कि हजरत
ये हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने के बाद भी अबू तालिब जो थे ना, वो सोचते थे कि मेरे भतीजे की जान को खतरा है, मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा है। लगातार लोगों ने हमले किए, किसी ने धमकी दी और अम्मार बिन वलीद ने कत्ल करने के लिए सौदेबाजी की भी कोशिश की। अबू जहल जो था एक बार भारी पत्थर लेकर उनका सर कुचलने आया था और उक़बा बिन अबी मुअय्त ने चादर लपेट कर गला घोंटने और मार डालने की कोशिश की थी। और हज़रत उमर भी तो ईमान लाने के पहले तलवार लेकर निकले थे कत्ल करने के लिए। ये सब वो सोचने लगे और दिल कांपने लगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने सारे जो कबीले वाले थे उनको बुलाकर कहा कि हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने भतीजे, मतलब हमारे जो कबीले का फ़र्ज़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हिफाजत करें। इस पे सब लोग यकजा हो गए कि ठीक है, हम इनके हवाले नहीं करेंगे, काफिरों के हवाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करेंगे इतने आसानी से, हम सब इनकी हिफाजत करेंगे। अब जैसा ही ये सुनना था ना, तो अब कुरैश को, मुशरिकीन मक्का को ये पता चल गया कि सारे कबीले वाले एक हो गए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले भी नहीं करेंगे। तो उनको चार बड़े धक्के लगे। पहला धक्का तो ये कि हज़रत हमज़ा इस्लाम ले आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशकश, मतलब जो सौदेबाजी थी उसको भी ठुकरा दिया था। और फिर ये कि कबीला बने हाशिम और बनी मुत्तलिब के सारे अफराद यकजा हो गए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। तो अब इन लोगों ने क्या तजवीज़ की, देखो आज हम भी ईमान लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत आने पे हम हिल जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अल्लाह हम तो नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह हम तो गुनाह से बचने वाले हैं, फिर ये हम पर क्यों परेशानी। लेकिन आइए देखते हैं नबियों के सरदार नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलियों के जितने वली औलिया अब्दाल गौस कलंदर है, इन सब के सरदार अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, ये सारे लोग, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये सारे लोग इसमें शामिल है। इनके साथ क्या किया गया, इन लोगों ने जब देखा कि सारा कुछ फेल हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट तैयार किया, उस पर लिखा कि हम लोग इन लोगों से बायकाट करते हैं, इनके कबीले वालों से, इनके खानदान वालों से। अल्लाह अकबर। और ऐसा बायकाट करेंगे कि मतलब ये जो कबीला यकजा हो गया है, तो ऐसा बायकाट करेंगे कि ना इनसे शादी ब्याह करेंगे, ना खरीदो फरोख्त करेंगे, ना इनके साथ उठे बैठेंगे, ना इनसे कोई मेलजोल रखेंगे, ना उनके घरों में जाएंगे, ना उनसे कोई बातचीत करेगा, जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले न कर दे। इस तरह से उन्होंने बायकाट किया। और मुशरिकीन ने इस बायकाट का एक दस्तावेज लिखा, मतलब एक एग्रीमेंट, एक कागज पर लिखकर एक सहीफा लिखा, और इसका अहद पैमान मतलब सारा कुछ लिखकर बैतुल्लाह के पास लगा दिया। बैतुल्लाह के अंदर एक कुछ रिवायत में आता है वहां पर लगा दिया और इस पर अमल करने लगे। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही कि ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर कितनी मुश्किलें आ गई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सारे मुसलमान ही नहीं थे, क्योंकि वो जो कबीले वाले थे वो हर कोई मुसलमान नहीं था, उसमें काफी मुशरिकीन भी थे, लेकिन वो सब कबीले वालों को एक वादी में वहां पर रखा गया। शुएब अबी तालिब कहते हैं उस वादी को, वहां पर रह गए। अबू तालिब भी थे उसमें। और इतनी परेशानी आ गई कि जब भी कोई माल आता, गिजा आती, तो ये जो मक्का वाले मुशरिकीन मक्का थे, वो ज्यादा ज्यादा पैसे देकर खरीद लेते सारी चीजें, ताकि इन लोगों तक ना पहुंचे। अब ये लोग सौदा लेने पहुंचे तक ये सारी महंगी महंगी दामों में खरीद चुके होते। यहाँ फाका कशी हो गई, भूख से बच्चे बिलकते और बिलबिलाने की आवाजें उस वादी से बाहर मक्का के लोगों को सुनाई देती थी। अल्लाह अकबर। सहाबा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन पर ऐसी मुश्किल कि कोई चीज़ खाने के लिए नहीं, बहुत कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। उसमें एक थे कि हकीम बिन हज़ाम, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे थे, कभी कभी अपनी फूफी के लिए गेहूं भिजवा देते थे, वो भी चुपके से भिजवाना पड़ता था। एक दिन अबू जहल ने ये देखा ना, तो गल्ला रोकने पर अड़ गया था कि इन्हें नहीं भेजा जाएगा, लेकिन एक शख्स थे अबुल बख्तरी ने बीच में इंटरफेयर करके उन्हें फिर से वो गेहूं भिजवा दिए। लेकिन हालात इतने परेशान हाल के बच्चे भूख से बिलबिलाते, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाने के लिए कोई चीज़ ना रहती। हालांकि ये होता कि अगर चलते चलते ना जंगल में कोई नर्म चीज़ भी पैर को लग जाती। मतलब एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये है कौल कि मैं जा रहा था तो मेरे पाँव को कुछ नर्म लगा, जब मैंने देखा कि ये ऊँट की खाल है, ऊँट की चमड़ी है, तो आकर उसको धोया और उसको फिर
उबाला, उसका पानी लोगों ने पिया, एक रिवायत में कि उसको भून कर उसका भूसा भी खा लिया। सोचो ये किस तरह से उन्होंने ये 3 साल निकाले। अल्लाह अकबर। ये हमारे सीखने का मकाम है कि हमें अल्लाह ताला ने इतने आसानी से ईमान की दौलत अता की है। हम भी खूब दिल लगा के नमाज़ें पढ़े, खूब इबादतें करें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दिल लगा कर दुरूद पाक पढ़े। देखो हम तक दीन पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई गई, और इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे 3 साल निकल गए। इस दौरान भी जब हज का मौसम आता ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादी से बाहर निकलते, और जो बाहर के मुल्कों से हाजी आते ना, उनको दीन की दावत देते। और जब दीन की दावत देते तो वही अबू लहब हरकत करता कि ये झूठे हैं, इस तरह से माअज़ल्लाह बातें किया करता, हाजियों को बहकाता रहता। अब क्या हुआ कि 3 साल गुजर गए। इसके बाद जुल्म सितम बढ़ता रहा। कुछ मक्का वाले जो थे उनको तरस आ जाता, रहम आ जाता उन बच्चों पे, रोने की आवाज़ों पर, भूखों पर, बीमार होते हुए देखते लोगों को, चीखो पुकार सुनते छोटे बच्चों की, तो रहम आ जाता। कहते कि एग्रीमेंट को हम नहीं मानते, इसे तोड़ा जाए, इसे रद्द कर दिया जाए, इसे कैंसिल किया जाए। पर बड़े बड़े जो सरदार थे उन्होंने वो दस्तावेज लगा दिया था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से फरमाया कि चचा आप उन लोगों से कह दे, हदीस शरीफ का मफहूम बता रही हूँ, कि जो एग्रीमेंट लगा हुआ है ना, तो जितना भी वो सहीफा है उस पे जहाँ अल्लाह का नाम है, जहाँ जहाँ वो सलामत है, और बाकी सारे कागज़ को कीड़े खा गए, दीमक लग गई है, और सारा कागज़ जो है वो कीड़े चाट खा गए। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर अबू तालिब आए और उन्होंने क्या किया, आकर उधर जो मुशरिकीन मक्का जहाँ थे ना, वहाँ एक खबर दी कि अगर मेरे भतीजे ने, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात की है, आप लोग देखो, अगर ये साबित हो गई सच्ची तो ये बायकॉट हटाना पड़ेगा, और अगर ये बात झूठी हुई तो हम हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हवाले कर देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, ये इंसाफ की बात है, ये इंसाफ की बात है। अब जब देखा गया वहाँ पर जाकर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह की शान जाहिर हुई कि अबू जहल और बाकी लोगों की जो नोकझोंक चल ही रही थी, तो जाकर देखा तो वाकई कीड़ों ने सारा का सारा कागज सफाया कर दिया था। सिर्फ बिस्मिकल्लाहुम्मा जहाँ पे लिखा हुआ था, बिस्मिकल्लाहुम्मा, बाकी रह गया, मतलब जहाँ अल्लाह का नाम था वहाँ, और जहाँ जहाँ लिखा हुआ था वो बचा था, बाकी सारा कुछ कीड़ों ने खा लिया था। तो उसके बाद क्या किया, वो सहीफा चाक किया गया, और शैब अबी तालिब से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, और भी कबीले में जो ईमान नहीं लाए थे लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले वाले थे, वो सारे बाहर आ गए, अबू तालिब बाहर आ गए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। के देखो इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया ना, एक ऐसा करिश्मा कि कागज़ को कीड़े खा गए, जहाँ पर मेरे रब का नाम था वो सलामत रहा। लेकिन अंधे, गूंगे और बहरे ऐसे लोग होते हैं कि आंखें होते हुए भी उनकी अक्लों ने उसे तस्लीम नहीं किया। आज भी ऐसा होता है कि कई बार अल्लाह की सी कुदरत सामने आती है, अल्लाह के से करिश्मे दिखाई देते हैं। ये जो साइंसदान है, ये सारी गैलेक्सी देखते हैं और कहते हैं कि ये कोई है जो पावर ये चला रहा है, कोई एक जात है ताकतवर जो ये चला रही है। कितने साइंटिस्ट लोग ईमान लेके आ रहे हैं कि ये अल्लाह की जात है, क्योंकि जो कुरान में लिखा हुआ है वो सच साबित हो रहा है। हमने बाइबल पढ़ी, हमने कई किताबें पढ़ी, हमने तौरात पढ़ी, लेकिन कुरान की हर आयत सच्ची है। जहां जाकर साइंस घुटने टेक देती है, वहां जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कलाम नाजिल हुआ वो सच साबित हो रहा है, लेकिन इंसान की अक्लें उसे नहीं मान रही है। देखो कितने लोग हैं जो ईमान नहीं लाते, और अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे वो ईमान ले ही आता है। अब देखो ये जो सरदार थे, इन्होंने ये देखा करिश्मा, अल्लाह ताला की ये कुदरत और ये ताकत और ये पावर देखी कि जहां अल्लाह का नाम लिखा है वहां कीड़ों ने नहीं खाया। लेकिन हुआ क्या, उनके नसीब में हिदायत नहीं थी, उनकी आंखें होते हुए भी वो अंधे रह गए। लेकिन बायकॉट जो था, वो एग्रीमेंट था, वो हटा लिया गया। अल्लाह अकबर। और 3 साल का जो तकलीफ थी वो अल्लाह ताला ने दूर कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने क्या सुना कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माल पेश किया गया, बादशाहत पेश की गई, इज्जत और मर्तबा पेश किया गया, सरदारी पेश की, लेकिन वो हक बात पर डटे रहे और कुरान पढ़कर सुनाया। आज हमें चाहिए कि हम कुरान से जुड़ जाएं। मेरी बहनों, हम कुरान से जुड़ जाएं, हम कुरान के तर्जुमे को पढ़ें, हम कुरान को पढ़ें कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हम कुरान को समझें कि हमारे रब ने हमसे क्या वादे किए हैं। ये कुरान ही था कि सहाबा कोई मालदार नहीं थे,
कई सहाबा बकरियां चराते थे, कई सहाबा थे जो गुलाम थे, लेकिन जब बड़े बड़े बादशाहों के सामने पेश होकर कुरान पढ़ते तो लोगों के दिल कांप उठते, कदम थर्रा उठते। ये कुरान की पावर है, ये कुरान की ताकत है। आज भी अगर हम कुरान से जुड़ जाए तो कोई ऐसी शय नहीं जो हमें हरा सके, क्योंकि ये आसमानी कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से निकला हुआ कलाम है। आज हमें कोई तबर्रुक मिल जाए कि फ़लाँ नेक शख्स का हाथ लगा हुआ झूठा पानी है, उसे लोग संभाल के रखते हैं, किसी का कोई जुब्बा मिल जाए किसी वली का, तो हम समझते अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह वाले है, उसमें बरकत होती है, लेकिन हम उसकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं। तो सोचो कलाम पाक जो हमारे घरों में रखा हुआ है, चिमट जाओ उससे, उसे चूमो मोहब्बत से, उसे देखो मोहब्बत से, कहीं अल्लाह ताला की शान नजर आए, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मोहब्बत से पुकारा हुआ नजर आए, उसको उठा के उसको चूमो। ये वो चीज़ है जो हमें दुनिया में भी अंधेरों से निकाल कर रोशनी का सफ़र दे सकती है, और कब्र के अंधेरों को भी सूरज की तरह रोशन और जगमगा सकती है, और हश्र के मैदान में हमारे नेकी के पल्ले को भारी कर सकती है, और पुल सिरात पर से गुजरने के लिए सवारियां मुहैया कर सकती है। जो पुल सिरात पर से लोग कट कट कर गिर जाएंगे, उस वक्त हमें ये सवारी मिल जाएगी। तो आज मौका है, कुरान को खोलो, उसको पढ़ने वाले बन जाओ। देखो तो सही, ये सहीफे को कीड़े चाट गए, जहां अल्लाह का नाम था वो सलामत रहा, लेकिन अंधे लोग अंधे रह गए, जिनके नसीब में हिदायत थी वो जन्नत के मुसाफिर बन गए। तो आज हमने जो ये वाक़या सुना ना, इंशाल्लाह आगे का भी जो सेशन है, और जल्द ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके जाएंगे, ये भी सफ़र हमें सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरी बहनों, आज हम ये सोचेंगे कि हम भी कुरान से जुड़ जाएंगे। ये वो कलाम पाक है, जब नाजिल होता था तो देखो वो सरदार जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने आया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें पढ़ी, ठिठर के रह गया, चेहरे का रंग उड़ गया। मुशरिकीन ने कहा क्या शानदार चेहरा लेके गया था, ये आ गया तो इसका रंग क्यों ऐसा हो गया है, इसका चेहरा क्यों फिर गया है। तो ये कुरान ऐसा है, ये कुरान ताकत है जो दिलों पर कब्जा जमा लेता है। ये कुरान ऐसी शय है कि पढ़ने वाले के हाथ में ना कोई बारूद है, ना कोई ताकतवर तलवार है, सिर्फ जुबान पर अगर जारी हो जाए तो सामने वाले के कदम जो है वो डगमगा जाए। तो अपने बच्चों को इससे जोड़ो, घर में तर्जुमा कुरान पढ़ो, तर्जुमा सुनो, तर्जुमा पढ़ो। ऐसा ना हो कि कब्रों में जाने का वक्त आए और लोग अरबी में कुरान पढ़ के हमें बख्शे, लेकिन हमारी जिंदगी जो है ये तर्जुमे को बिना जाने बिना समझे ही हम गुजार दें। नहीं नहीं, ये तरीका है जो हमें जिंदगी जीने का करीना सिखाता है। ये वो अल्लाह ताला का कलाम है कि हमें इससे अल्लाह ताला के वादे समझ में आएंगे, और हमें ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए ये समझ में आएगा इंशाअल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे कुरान से जुड़ने की, क्योंकि इसकी पावर देखो, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम पढ़ते हैं ना तो कुरान से ऐसा इश्क हो जाता है कि ना नींद कुरान के सिवाय, ना हमें चैन कुरान के सिवाय, क्योंकि समझ में आता है कि जो सहाबा थे भले ही पहले कमज़ोर थे, लेकिन आगे आप लोग सुनोगे ये कैसर और किसरा के बादशाह के जो तख्त पे तख्त नशी हो गए, बादशाह मार दिए गए, बादशाह हरा दिए गए, जो बड़े बड़े सोने के कंगन थे उनके, ये सहाबा को पहना दिए गए। ये क्या था? ये कुरान था जो कब्जा दिलाता जा रहा था, जो फतह और जीत दिलाती जा रही थी। आज अगर हमारे नसीब में हार है या शिकस्त है या कमज़ोरी है या थकान है या परेशानी है, तो ये सिर्फ इसलिए है कि हम कुरान से दूर है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे हाथ में है कुरान और तू दुनिया में फिरे परेशान, तेरे हाथ में है कुरान और तू दुनिया में फिरे नाकाम। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में कुरान है, हम उसको खोल के पढ़े कि अल्लाह तूने क्या फरमाया है, अल्लाह तू हमसे क्या चाहता है। और जैसे सहाबा कहते थे कुरान को देख के, हाजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, हाजा किताब रब्बी, ये मेरे रब की किताब है। और रिवायतों में आता है कि वो बेहोश हो जाते ये कह के कि अल्लाह का कलाम हम गुनहगारों के हाथ में, अल्लाह अकबर। तो इससे जुड़ जाओ। देखो सरदार के चेहरे का रंग उड़ गया, इतने ताकतवर ग्रुप और गैंग जो थी वो पीछे हट गई सिर्फ कुरान की आयत सुनकर। तो जब हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी तो कोई बातिल, कोई सताने वाला हमारी ज़िंदगी में कभी टिक नहीं सकेगा। तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
اور جتنے لوگ جتنے بہنیں یہاں جڑی ہیں میری سب کے لیے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس سب کے لیے دعا ہے کہ تماموں کی زندگیوں کو قرآن سے آراستہ کر دے، قرآن سے مزین کر دے، قرآن سے روشن کر دے، ہماری زندگی کو بھی قرآن سے روشن کر دے، ہماری قبروں کو بھی قرآن سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال نامے جب کھولے جائیں تو گناہ معاف ہو کر وہاں اندھیرے اعمال نامے میں بھی قرآن کی روشنی سورج کی طرح چمکا دے، اور الہ العالمین ہم جنت میں بھی قرآن پڑھ کے ہر درجے پر چڑھتے جائیں۔ جو بہن میری جس پریشانی میں ہے یا اللہ، جو تنہائی میں جو دعائیں کرتی ہے، اس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیشن کے طفیل میرے مولا، یہاں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو دعائیں تجھ سے دل میں چاہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا ہے، جس کی زندگی میں جو چیز نہیں ہے میرے مولا اسے عطا فرما دے، جو صحت چاہتے ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، جو دولت چاہتے ہیں انہیں دولت عطا فرما دے، جو اولاد چاہتے ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے، جو نیک رشتہ چاہتے ہیں انہیں رشتہ عطا فرما دے، جو ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں انہیں حلاوت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو چیز چاہتا ہے اس قرآن کے طفیل ہم سبوں کی جھولیاں بھر دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔